Good morning, students. Myself Deepali Harchande. I welcome you all for the political science session. Already we have started the fifth lesson, that is Contemporary India, Good Governance, and this is the fourth part of the fifth lesson. Fine. Directly I am going to move towards the point. I am not going to revise it. If you want the previous lectures, I have already uploaded 3 parts of this lesson, so go through this. Today we are going to start, or we are going to deal with Lokpal, then Lokayukta. After that we'll deal with the citizens charters and e-governance. These 3 points we are going to learn in this session. Let's start with the Lokpal and Lokayukta. Fine. Lokpal and Lokayukta, these 2 posts are very important in the government or in administration system. And why it is very important, that I am going to explain next. Fine. Before going through the Lokpal and Lokayukta, let me see what kind of questions they have asked. In true or false, they have asked one question: Lokayukta can investigate complaints against political executives. That question they have asked. I am going to give you answer. Then on the basis of Lokpal and Lokayukta, they have not asked any kind of question. Means we can say this part we should not go deep in that Lokpal and Lokayukta. For the kind of information, for the sake of information, we are going to learn it. Yes, but on e-governance, then good governance, they have asked many questions. Fine. Very first, what was the question? Lokayukta can investigate complaints against political executives. Yes, it is very correct. The sentence is true. Now let's see what is the function of Lokpal and Lokayukta. Then what are all the responsibilities they have on their shoulders, that we are going to learn. Now Lokpal and Lokayukta Act 2013 came into force in 2014. This act was passed to stop corruption and provide proper service to citizens. Yes, to provide corruptions, or we can say to prohibit corruptions. For that purpose, Lokpal and Lokayukta, that act has came into force in 2014. हिंदी में देखेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये जो पोस्ट है ये 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ. ये एक्ट 2013 में आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 2014 से चालू हुआ. और इनका काम क्या है? व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू गो अगेंस्ट करप्शन. और हम बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार के विरोधी काम करना. भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे कंट्री में, तो उसके लिए ये लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये जो पोस्ट है और इसमें जो लोग नियुक्त होते हैं वो लोग काम करते हैं. तो आपको समझ में आया इनका. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू स्टॉप करप्शन. ये उनकी फर्स्ट प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना है हमें. अगर भ्रष्टाचार हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है, ऑफिशियल्स मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स विच वी हैव सिलेक्टेड, हमने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, अगर वो कुछ करप्शन कर रहे हैं तो इसके खिलाफ सामान्य जो लोग हैं वो जा सकते. और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? लोकपाल एंड लोकायुक्त. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. लोकपाल इज वर्किंग फॉर द सेंटर एंड लोकायुक्त इज वर्किंग फॉर स्टेट. लोकपाल ये जो पोस्ट है, लोकपाल जो एक नियुक्त किया जाता है, वो सेंटर गवर्नमेंट में काम करता है, मतलब दिल्ली में सेंटर गवर्नमेंट के लिए काम करता है. और लोकायुक्त है, ये अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं. तो लोकायुक्त कहाँ पे होता है? लोगों का आयुक्त. लोगों ने खुद ही एक आयुक्त को चुना है हर एक स्टेट में. तो
उनका काम क्या है, करप्शन के खिलाफ लड़ना है। और लोकपाल मतलब क्या है, सब लोगों का जो पालन पोषण करता है, सब लोगों का पाल है, मतलब सब लोगों के ऊपर एक हेड पोजीशन पे है। तो वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करके जो कुछ बड़े पैमाने पे, मतलब स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में, पूरे कंट्री में जो कुछ करप्शन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो ये जो ड्यूटी है लोकपाल और लोकायुक्त की। ना लोकपाल इज़ फॉर यूनियन, यूनियन मीन्स सेंटर गवर्नमेंट वी कैन से, एंड लोकायुक्त इज़ फॉर स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। अभी हमें ये देखना है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट एंड पायोनियर स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्त। अभी लोकपाल ये तो कंसेप्ट थी, ये जो पोजीशन, ये जो पोस्ट था वो तो था, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट ऐसा पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने लोकायुक्त नियुक्त किया खुद के स्टेट के लिए। और उन मतलब लोकायुक्त से हम जो हमारे स्टेट में जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कुछ गलत काम हो रहे हैं, वो लोकायुक्त के मार्फत, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट ने ये नई पॉलिसी अप्लाई की, इम्प्लीमेंट की। उसके बाद बाकी के जो स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने लोकायुक्त नियुक्त करना स्टार्ट किया। फाइन, अभी थोड़ा बुकिश स्टाइल में हम पढ़ेंगे। लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स। दिस ऑफिस वुड इंक्वायर, अभी ये ऑफिसर्स है, उनका काम क्या है, दिस ऑफिस वुड इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन। एलिगेशन मीन्स व्हाट, एन असर्शन। असर्शन मीन्स व्हाट, अगर किसी ने कंप्लेंट की है, आरोप है किसी के ऊपर, तो उसका वो क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, उसको सॉल्व करने का एक प्रयास करते। would inquire into allegation of corruption against public functionaries. Now public functionaries means what, the administration system, the structure which constitution has given us. So उसको क्या बोलते हैं, public functionaries. Functionaries means पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मराठी में हम उसको कार्यकर्ता बोलते हैं। ये जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक फंक्शनरीज। ध्यान दे देना, पब्लिक फंक्शनरीज मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर वर्किंग इन वेरियस ऑफिसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। मीन्स नॉट ओनली इन सेंट्रल बट स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनके खिलाफ अगर आपको कुछ रिपोर्ट दर्ज करना है, अगर आपके कुछ एलिगेशंस है, एलिगेशंस मीन्स कुछ कंप्लेंट है, तो आप किसको अप्रोच कर सकते हो, आप लोकपाल और लोकायुक्त ऑफिस में अप्रोच कर सकते हो और उनके पास ये आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इट शोज़ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। ये क्या है, क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस देने का हमें ये एक प्रयास है। अभी ये लोकपाल, ये कंसेप्ट हमारे इंडिया की नहीं है। जैसे हमने देखा है लास्ट ईयर कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, फ्रेंच, दैन स्वीडन, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सब हमने लर्न किया है। और उसमें से थोड़ा थोड़ा जो हमारे जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मिलता जुलता है, वो सब हमने अडॉप्ट किया है। उतना ही हमने अडॉप्ट किया है, किसके लिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो स्मूथली रन होने के लिए। तो अभी ये कंसेप्ट कहाँ से आई, ये कंसेप्ट आई स्वीडन से। और ये जो ऑफिस हमने लोकपाल और लोकायुक्त नाम दिया है, लेकिन उसका नाम क्या है स्वीडन में। सी, द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्वीडन वेयर द ऑफिस इज कॉल्ड ऑम्बुड्समैन। ये नाम है उस ऑफिस का जो स्वीडन है, ऑम्बुड्समैन। फाइन, बट हमारे कंट्री में हमने उसका नाम क्या किया है, लोगों का जो रखवाला है, जो प्रोटेक्शन करता है लोगों को, उसको लोकपाल, और लोगों का जो आयुक्त है, जो हेड है, उसको बोलते हैं लोकायुक्त। तो हमने वो ट्रांसलेट किया है। ऑम्बुड्समैन मीन्स द सेम। स्वीडन में जो लोग हैं उनको जो प्रोटेक्शन देते हैं, उनके
अधिकारों का, उनके राइट्स के लिए जो प्रोटेक्शन देता है उस ऑफिस को बोला जाता है एम्बुड्समैन। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लोकपाल और लोकायुक्त। द टिपिकल ड्यूटीज ऑफ एन एम्बुड्समैन आर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स against government officials and attempt to resolve them. Just now we have seen that what type of question in the exercise they have asked. Yes, what is the responsibility of this ombudsman or of this lokpal and lokayukta? That is to investigate complaints against government officials. मतलब जो लोग गवर्नमेंट के खातों में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ कंप्लेंट्स है तो वो अटेम्प्ट करना है और उसको रिजॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है। ये काम किसका है, लोकपाल एंड लोकायुक्त का। स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर वी हैव सीन दैट द महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट एंड फर्स्ट पायोनियर स्टेट। पायोनियर मीन्स व्हाट, जो हम बोलते हैं कि फॉलोअर है किसका। अभी हमने ombudsman का इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया और पहले सिर्फ महाराष्ट्र में ये लोकायुक्त की जो पोस्ट है उसको, उसका ऑफिस और उसका रीनेम किया गया। तो पायोनियर स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्ता, द महाराष्ट्र लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन केम इनटू बीइंग इन 1972। मीन्स व्हाट, ये केम इनटू बीइंग मीन्स कब एग्जिस्ट हुआ, 1972 में। पहले हमें इंडिपेंडेंस कब मिला है, 1947। सो 1947 to 1972 we didn't have any structure, we didn't have any functionary where we can complain against the officials, against the representative of India. Fine. So that time the corruption was on a higher level. Now the Indian government, they have decided that we have to reduce the corruption, we have to reduce the what we call, हम बोलते हैं ना जो काम अच्छे तरह से नहीं करते हैं लोग, जो नैतिकता को छोड़ के काम किया जाता है, बहुत सारे स्कैम्स है, घोटाले है ये सब काम है, वो उसके खिलाफ काम करने के लिए, ये करप्शन रोकने के लिए क्या किया गया, लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। फाइन। अभी क्या है, Lokayukta can investigate allegations or grievances. Grievances means again complaints arising out of the conduct of public servant, including political executives, legislators, officers of the state government, local bodies, public enterprises and other instrumentalities of government. Now means what? इसका मतलब क्या है, लोकायुक्त का काम क्या है, जो ग्रीवियंसेस है, जो एलिगेशंस है, किसके खिलाफ, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी है, हमारे जुडिशरी कमेटी है, फाइन, लोकल बॉडीज़ है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, अलग अलग ऑफिसेस है, एंटरप्राइजेस है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करता है, कौन कंप्लेंट दर्ज करेगा, ऑब्वियसली द कॉमन पीपल। हम जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखते हैं कि हम फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर महाई सेवा सेंटर जो है अगर वो नहीं रहते तो क्या होता, हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड निकालने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता, एक कुछ जो ऑफिस दिया गया है वहाँ पे। अगर वहाँ पे हमारा काम जल्दी नहीं होता है, अगर बार बार वो लोग बोलते नहीं आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, अभी टाइम नहीं है, अभी साहब नहीं है, अभी साइन नहीं हुई, बहुत बार वो चक्कर लगाने के लिए कहते हैं, तो उस वहाँ पे हम क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, वी फेड अप विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर टेकिंग स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द कॉमन सिटीजन्स, ऑब्वियसली टू कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन, the person who is not doing our work, the person who is not responding us, that we have to file the grievance against him. So ये हमें राइट दिया है, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो अभी क्या हुआ, महाई सेवा जो सेंटर्स है वो हर जगह है,
ऑफिसेस हर एरिया में लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छी फैसिलिटी मिले और लोगों का काम जल्दी हो जाए इसके लिए। और उसमें भी बहुत सारा करप्शन, मतलब महाई सेवा केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो ऑफिसेस बता रही हूँ, बहुत सारा करप्शन है। अगर आपकी फ़ाइल आगे पहुँचानी है, अगर आपको आपका काम जल्दी करना है, तो आपको टेबल के नीचे से देना पड़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तब तक आपका कुछ काम नहीं होता है। तो इसके खिलाफ हम कहाँ पे जा सकते हैं? कहाँ पे? लोकायुक्त के पास और लोकपाल के पास। लोकपाल के पास कब जाएंगे? अगर मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और मेरा ऑफिस और मेरी इंडस्ट्री अगर केरला में है, लेकिन वहाँ पे कुछ मेरा काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं किसको अप्रोच करूँगी? सो एट दैट टाइम आई विल अप्रोच टू लोकपाल। तो गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी के भी खिलाफ एलिगेशन हो, ग्रीवियंस हो, तो लोकपाल और लोकायुक्त को काम करना और वो सॉल्व करना ज़रूरी है। A member of the public can file specific allegations with the लोकायुक्त against any public servant for inquiry। अगर हमें इंक्वायरी करनी है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की, लोकायुक्त के पास जाओ। The लोकायुक्त can also initiate suo motu inquiry into the conduct of public servant। Now it is a name of that procedure, suo motu inquiry। ये नाम है, ये प्रोसीजर होता है। और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो कुछ एलिगेशन लगाया है उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और वो सॉल्व करने का रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड पिनाकी चंद्र घोष एज द फर्स्ट लोकपाल इन 2019। अभी 2019 में फर्स्ट हमारा लोकपाल नियुक्त किया गया। उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो ये फर्स्ट लोकपाल है जिनको 2019 में 2019 में अपॉइंट किया गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये देखो जो मैंने अभी बताया, सॉरी मैंने स्लाइड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये उनका ये जो है ना एम्बुड्समैन, जो मैंने अभी बताया एम्बुड्समैन, ये स्वीडन में उस ऑफिस को एम्बुड्समैन बोलते हैं। उनका काम क्या है? इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन्स व्हाट? कोई भी गवर्नमेंट में काम करने वाला ऑफिसर। नेक्स्ट हमने क्या देखा? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकायुक्त। देन 1972 में हमारा लोकायुक्त नियुक्त किया गया, वो केम इनटू फोर्स। Then what is the responsibility of लोकायुक्त? To investigate allegations। Allegations means what? जो कुछ आरोप लगाए गए हैं वो। Then arising public servants against public servant including political executive, legislator, officers of the state government, local bodies, public enterprises। किसी के भी खिलाफ कोई भी आरोप हो, कोई भी एलिगेशन हो, कोई भी ग्रीवियंस हो, ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट, तो क्या करेंगे हम? किसको अप्रोच करेंगे? लोकायुक्त को। अब ये देखो पावर्स ऑफ लोकपाल, एंड यहाँ पे क्या है? लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। यू जस्ट टेक पिक ऑफ इट। वन ऑफ माई स्टूडेंट आर्यन सोलोमन, he created that PPT। See, powers of Lokpal and Lokayukta's bill. Actually, no one will ask us the powers of Lokpal. Just for the sake of information, we are learning this information. Next point is Citizens Charter. Fine. अभी ये Citizen Charter means what? इसको मराठी में बोलते हैं नागरिकांची सनद। नागरिक मीन्स हू? द सिटीजन्स। सिटीजन्सने और नागरिकांनी जे तयार केलेलं ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे त्याला सिटीजन चार्टर बोलतात. नाव सिटीजन चार्टर मीन्स व्हॉट? सिटीजन्स चार्टर इज बेस्ड on the premise that the citizen is king and government organization exists to serve the citizen. That is very
informative, we can say very good definition which has been mentioned on the page number 52. पेज, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक हो, ओपन करो, पेज नंबर 52 पे जाओ, उसमें सिटीजन चार्टर क्या दिया गया है। सिटीजन कौन है? सिटीजन एक राजा है। काय ये सब काम कहाँ पे होता है? ये नागरिकांची सनद जो है यहाँ पे दिया गया है। फाइन, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है? सिटीजन्स आर रूलर्स। हम क्या है? हम रूल कर रहे हैं। देयर इज़ अ टाइम फ्रेम मेड इन विच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज़ टू गिव डॉक्यूमेंट्स दैट द सिटीजन्स नीड टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ सिटीजन्स। अभी ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि वेदर द सिटीजन्स दे आर सेटिस्फाइड और नॉट विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका काम है? ये सिटीजन चार्टर का मतलब इसमें जो दिया गया है, लॉ है, एक्ट है, तो उसके हिसाब से उन्होंने भी इवैल्यूएशन करना चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? सिटीजन चार्टर इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये हमें मिला है 1996 में, ये आया है। तो उसके बाद क्या हुआ है? हम गुड गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे। इट्स लीड्स टू द मीन्स सिटीजन चार्टर लीड्स टू द गुड गवर्नेंस। देन गो टू द नेक्स्ट पेज। सोशल कॉन्टैक्ट टू सिक्योर राइट्स। हमारे राइट जो है वो सिक्योर होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू गिव अ स्ट्रक्चर सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी द सिटीजन इज किंग। येस, आई हैव ऑलरेडी taught all this point. Next is we'll move towards the e-governance. It is very easy and it is very simple. Let me teach you in a short. E-governance means what? E means what? Electronic machines electronic machines are utilized in various offices. That is known as e-governance. Means in the government system, in various institutions, in various organizations, the government they have started using computers, then various machineries and different type of communication technology we are going to start it. Means our system, government system, they have started with the communication, we have started with the technology. हमने क्या किया है? ICT का इस्तेमाल किया है। आप सबको पता होगा कि MSCIT ये कंपलसरी है सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए। क्यों MSCIT कंपलसरी है? एटलीस्ट वन कैन feel their form, at least one can go through the structure or go through the procedure of this e-governance. अगर फार्मर्स का एक एग्जांपल लेंगे, उनके लिए अलग अलग सुविधा उपलब्ध है, अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार भी दे रहा है। लेकिन अगर आपको इस योजनाओं का लाभ लेना है तो क्या करना है? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसकी? आपको कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, मतलब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे सिखाई जाती है? MSCIT कोर्स में, और ये ICT के अंदर भी हमें सिखाया जाता है। तो उसका इस्तेमाल करके हमारे गवर्नमेंट ने एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब अच्छी सर्विस कैसे? ई-गवर्नेंस का उपयोग ही क्या है? अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे हमने RTI देखा है। RTI क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने आज एप्लीकेशन दिया है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, सो विद इन 15 days, विद इन 1 month, मीन्स एज पर द रूल दे विल प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। मीन्स वॉट? immediately they will get information and I will get information through the e-governance, through the electronic modems, we can say electronic टेक्नोलॉजी। फाइन। सो इसके वजह से क्या हुआ है? जो हमारी जो पूरी ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फास्टर बन गई है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ एलिवेटिंग द गवर्नेंस प्रोसेस टू न्यू लेवल्स। एलिवेट हुआ है। एलिवेट मतलब क्या हुआ है? आगे बढ़ चुका है।
आगे क्या बढ़ चुका है, जो हमारी प्रोसेस है अब तक, जो हम सब कागज़ पे लिखते थे, जो हम कागज़ को इस्तेमाल करते थे सारे प्रोसेस के लिए, अभी क्या हुआ है, कागज़ हट गए और कंप्यूटर आ गया है। विद इन अ सेकेंड आपको 20 साल के पहले की, 30 साल पहले की सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके हाथ में मिल सकती है। फाइन, आपको डाटा मिल सकता है, प्रूफ्स मिल सकते हैं, वेरियस एविडेंसेस यू विल गेट विद इन अ क्लिक, वन क्लिक। सो ये क्या है, ये ई गवर्नेंस की क्या है, ये रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए है, टू एलिवेट द गवर्नेंस प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस है वो फास्ट करने के लिए इसका हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। Over the years, a large number of initiatives have been undertaken by various state governments and central ministries to bring in an era of e-government. See, page number 54 I am talking about. Efforts have been made at various levels to improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them. To improve the public services, अभी हमने क्या देखा है, क्या पढ़ा है कि हम राजा है, सिटीजन्स राजा है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो वो सर्विस और फास्ट कैसे मिल जाए, इसके लिए ये काम कर सकते हैं। अभी ये और एक एग्जांपल ले लो, ये मीन्स इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, बट विद इन अ क्लिक व्हाट वी कैन गेट, व्हाट ऑल थिंग्स वी कुड गेट, सी स्विगी, देन जोमेटो, Amazon, Flipkart. On one click you can buy, you can purchase many things. Fine. So this is also examples of e-technology, electronic technology, new technology. Fine, which we are using in our day-to-day life. Fine. Nowadays smart card are there, debit card, ATM card. Within a click we can collect money also from ATM machines. So this all examples are the examples of elevating of our life. It leads towards the progress of our life. That's it. Fine. Last point, it is the integration of public and business, organization and government for the service and information. Yeah, the same thing I have taught right now. जो business है, जो उसको एक आगे के लेवल पे, एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए भी ये सर्विसेज क्या है, मायने रखती है। See, in simple words, it is an integration of application that is used by government to provide their services to public or business organizations or to other government department. The government of India has developed this process to bring public service closer to home of citizens. हमारे आसपास के वार्ड में ये सब सर्विसेज दी गई है हमें। Fine, in the form of Maha Seva Kendra. This is to achieve by building a countrywide infrastructure reaching down to the remotest of villages and large-scale digitization of records to enable easy, reliable access over the internet. इंटरनेट के एक्सेस से क्या क्या होता है, सब जगह हमने डिजिटलाइजेशन किया है। जो रिमोटेस्ट विलेजेस है, जो बहुत दूर है, वहाँ पे भी हमने क्या किया है, रिवॉल्यूशन किया है, क्रांति की है। हमने क्या किया है, सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जियो को टावर अब अगर आप देख सकते हो तो जियो के टावर सब जगह आपको लगे हुए दिखाई देंगे। मतलब जो रिमोट है, बहुत दूर एरियाज़ है, आदिवासी एरियाज़ है, जहाँ पे लोगों का जो बस्ती है वो बहुत कम है, वहाँ पे भी हमने क्या किया है, डिजिटाइजेशन किया है। किसकी वजह से, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। सी, सो ई गवर्नेंस में क्या क्या हमें मिलता है, इमीडिएटली वी कैन गेट द बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विल गेट इट ऑनलाइन इफ़ यू फिल द फॉर्म, then after few days you will get all that your important documents. This has brought administration closer to the people. Yeah, I agree with this. Nowadays we are not spending lots of time for this government offices. Within a click, within a particular time, our work has been done by the offices also. The best example in front of you is like this type situation of corona. If any person wants to update his her Aadhaar card, she doesn't have to go out. They can just sit at home and can update their Aadhaar card
from their phone. Yes, in this pandemic situation, government has launched many programs. Means from your house you can do multiple of work, means online transactions, online shopping. Then if we want to transfer, or we can say, if I want to get the PAN card, Aadhaar card, passport, so within a click I will get everything. Even in this pandemic situation, everyone, we have all downloaded one app. Do you know the name of that app? The name of that app is Aarogya Setu app. So students, in this lecture what we have learned about Lokpal Lokayukta, then Citizens Charter and e-governance. So we will stop here, and in the next part we'll start with right to information, citizen participation, special institutional mechanisms. So I hope in the next lecture we will complete with the lesson, and in the next lesson I will upload, or I will try to give you exercises also. So here we'll stop. Thank you. Be safe, stay safe. Bye bye.